Good morning to you all. Myself, JVN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapith, Women's University, Jaipur. Today, we are starting with a new chapter, that is locomotor system. And in today's lecture, we will be discussing about its introduction. So, what is locomotor system? Locomotor system or the musculoskeletal system is an organ system that gives the ability to move using the muscular and skeletal systems. It is constituted of bones of the skeleton, muscles, cartilage, tendons, ligaments, joints and other connective tissues that supports and binds tissues and other organs. It provides form, support, stability and movement to the body. So this is the musculoskeletal system. It consists of the muscles, cartilage, bone, tendons, joints and ligaments. As we can see, there are a lot of muscles and we can see the different kind of bones that are present in human body. What is the function of musculoskeletal system? The most important functions of musculoskeletal system consist of movement, hematopoiesis, and reservoir of calcium and phosphorus in the body. The movement that we usually do in our day-to-day life, the hematopoiesis means formation of blood and reservoir of calcium and phosphorus that is usually stored in the bones and can be utilized in cases of deficiency or excess. What are the different manifestations of musculoskeletal disorders? The common disorders for which the patients are coming to us for their treatment. So most important manifestations are number one, pain, and number two, impairment of the locomotor function. So the first is the pain. दर्द जब दर्द होता है तभी पेशेंट हमारे पास दिखाने के लिए आता है या फिर whenever there is impairment of the locomotor function. जब भी उसका locomotor function impaired होता है, जब वो ठीक से चल नहीं पाता है, अपना काम ठीक से कर नहीं पाता है, तब वो हमारे पास दिखाने के लिए आता है. Now pain आता कहाँ से है? From where does this pain arise from? The pain arises from the muscles, the tendons and the periarticular surfaces. जो muscles हैं आपकी body की, वहाँ से pain आता है, tendon से आ सकता है या फिर periarticular surface से आपका pain originate हो सकता है, as you can see in this image. Now what is the anatomy? Anatomy of the bones. Bones कितने types की होती है? You all have studied the anatomy, the basic anatomy in your first year. यहाँ पे थोड़ा सा एक रिविजन करेंगे ताकि हमें कुछ आइडिया हो पाएगा लोकोमोटर सिस्टम का. So the bones on the basis of embryology consist of flat bones, long bones, there are short bones, there are sesamoid bones, there are irregular bones, and there are sutural bones. So there are different kind of bones that are present in our body. Now the bone cells. So there are different kind of bone cells that are present. Different kind of bone cells. We have osteogenic cells, we have osteoblast cells, we have osteoclast cells, we have osteocytes. Osteocytes are basically the mature bone cells. Osteoclast cells are the cells which resorbs the bone or which are helpful in destruction of the bone cells, and osteoblast cells which forms the new bone cells. Now the different types of joints. There are different types of joints that are present in the body. The most common is the fibrous joint. Fibrous joint, the skull joint. Next one is the fibrocartilaginous joint that is most commonly seen in the symphysis gluteus, intervertebral disc, etc. We also have synovial joints. Synovial joints are most limb joints. So the most common joint that are responsible for pain are the synovial joints, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पेन के symptoms हमें देखने को मिलते हैं. It consists of articular cartilage, synovial fluid, intra-articular disc, joint capsules, and synovial membrane. So these are the images of the various kind of joints. We have the fibrous joint. These are immovable joint basically. Cartilaginous joints are slight movable joints, and synovial joints are freely movable joints. तो हमारी body में जितने भी immovable joints हैं, especially in the skull, those are the fibrous joint. जो कि semi movable हैं, those are the cartilaginous joint that is present in the vertebral column, and we have the synovial joints that are freely mobile joints. This is the structure of the bone, the joint, which have the bone, the articular cartilage. We also have the joint. This is the structure of the synovial joint basically.
साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, जॉइंट कैविटी है, कंटिन्यू साइनोवियल। नाउ दिस इज द नी जॉइंट, दिस इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट जहाँ पे पेन होता है। सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे कॉमनली हमारे पास में जो आता है वो नी जॉइंट को लेके आता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट। आपका नी जॉइंट में क्या क्या चीज़ें होती है, किससे मिलकर बना होता है, कौन सी कार्टिलेज होती है, कौन सा टेंडन होता है, कौन सा लिगामेंट होता है, कौन सा बर्सा होता है, कौन सी टिब्रोसिटी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, दिस इज द पैरासाइटिक सेक्शन ऑफ द मिडलाइन नी जॉइंट। नाउ कभी भी कोई भी पेशेंट हमारे पास में जॉइंट पेन का आता है तो हमें किस तरह से मूव करना होता है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल, है ना। कुछ प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना होता है जिसके अंदर, जिसे एल्गोरिथम बोलते हैं, एल्गोरिथम ऑफ फॉर द मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स। जब भी कोई मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स हमारे पास में लेके आएगा पेशेंट, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। Musculoskeletal complaints में initial rheumatic history, you have to ask for the rheumatic history and the physical examination has to be done. आपको सबसे पहले पूछना होता है पेशेंट से, आपको उसका एग्जामिनेशन करना होता है, फिजिकल हिस्ट्री लेनी होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, rheumatic हिस्ट्री, कब से पेन है, कैसा है, कब से है, कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपको पूछनी होती है। देन यू हैव टू आस्क फॉर इज इट आर्टिकुलर, क्या जॉइंट में पेन है, जॉइंट के अलावा कहीं पेन है। दूसरी चीज़ आपको पूछनी होती है एक्यूट है या क्रॉनिक है, यानी कि रिसेंट ओरिजिन है या फिर काफ़ी पहले से हो रहा है। एक्यूट जो पेन्स होते हैं यूजुअली 6 हफ्ते के से कम के होते हैं और क्रॉनिक पेन्स आर यूजुअली ग्रेटर देन 6 वीक्स इन ड्यूरेशन। इज द इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट, आपको पूछना होगा कि कहीं सूजन तो नहीं है अभी जॉइंट के अंदर, है ना, है या नहीं है। इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आप सब लोगों को पता है, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ये सब चीज़ें होती है उसमें। एंड हाउ मेनी जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, ये आपको उससे पूछना होता है पेशेंट से कि सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व है या मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व है। अगर नॉन आर्टिकुलर कंडीशन है जिसके अंदर जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है और पेन लेकर आ रहा है पेशेंट हमारे पास में, तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम दीज वेरियस गिवन कंडीशंस। इसमें आप देख सकते हो ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को, अगर जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, रिसेंट ओरिजिन है, ठीक है, तो आप लोगों को ये लग सकता है कि अगर जहाँ भी जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो इन्वॉल्व होगी, जिसमें ट्रॉमा हो सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है, आपको हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी। फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, पॉलीमाइल्जिया, रूमेटिका हो सकता है, देयर कैन बी चांस ऑफ बर्साइटिस या फिर टेंडिनाइटिस हो सकता है। दीज आर द फ्यू पॉसिबिलिटीज अगर पेन हमारे पास में पेशेंट लेकर आ रहा है तो नॉन आर्टिकुलर कंडीशन का है ना। जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, पेन हो रहा है, तो वी कैन थिंक ऑफ ट्रॉमा और फ्रैक्चर, वी कैन थिंक ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया, we can think of polymyalgia rheumatica, we can think of bursitis और tendinitis। लेकिन अगर नॉन आर्टिकुलर नहीं है और आर्टिकुलर है तो फिर आप कैसे मूव ऑन करोगे किसी भी पेशेंट को। आप पूछते हो कि आर्टिकुलर, अच्छा ठीक है, तो कितने टाइम से है, अगर 6 हफ्ते से कम है तो एक्यूट केस है। एक्यूट पेन अगर है तो कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हो सकती है। एक्यूट केस में अगर थोड़े टाइम से ये लेस देन 6 वीक्स है तो इसमें एक्यूट आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस का ये केस हो सकता है, गाउट का ये केस हो सकता है, स्यूडो गाउट का ये केस हो सकता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है या फिर इनिशियल प्रेजेंटेशन हो सकता है क्रोनिक आर्थराइटिस। सो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्लिनिकल कंडीशन हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे, जैसे आप इन्हें डायग्नोस करोगे, कौन कौन से टेस्ट आप करा के देख सकते हो। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये कंडीशंस हो सकती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन सी प्रोबेबल डिजीज हो सकती है, ताकि हम इसके बारे में सोच सकें और उसके क्वेश्चन, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है, मैनेजमेंट है, उसको अच्छे से हम लोग याद कर सकें। तो एक्यूट कंडीशन अगर हमारे पास में आती है लेस देन 6 वीक्स की, और तो उसमें हमारे पास में एक्यूट आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है, स्यूडो गाउट हो सकता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकती है या फिर वो एक इनिशियल प्रेजेंटेशन हो सकता है क्रॉनिक आर्थराइटिस का। अब अगर आर्टिकुलर कंप्लेन है और ग्रेटर देन 6 वीक्स की है तो हम बोलेंगे कि वो क्रॉनिक कंडीशन है। अब क्रॉनिक कंडीशन अगर है 6 वीक से ज़्यादा पुरानी कंडीशन है तो हमें पूछना होगा उससे कि इज देयर एनी इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट, क्या वहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन मौजूद है। इज देयर प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस, क्या वहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस है, सुबह उठते ही पेशेंट को अकड़न चालू हो जाती है। इज देयर एनी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, क्या वहाँ पे कोई सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग है। आर देयर एनी सिस्टेमिक सिम्टम्स, क्या इसके अलावा कोई और सिस्टेमिक सिम्टम्स भी बॉडी में मौजूद हैं। इज द ईएसआर और सीआरपी एलिवेटेड, क्या जो पेशेंट हमारे पास में आ रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन में ईएसआर या सीआरपी इंक्रीज एलिवेटेड है या नहीं है। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन को बताता है।
इफ नो, अगर ऐसा वो बोलता है पेशेंट नहीं ऐसा नहीं है, ये जो पहले वाली कंडीशन हमारे पास में है, इन्फ्लेमेशन नहीं मौजूद है वहाँ पे, बाकी सारे सिम्टम्स भी नहीं है, तो क्या होगा कि नहीं है तो फिर वो क्रॉनिक नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस 6 हफ्ते से ज्यादा से है लेकिन इन्फ्लामेशन मौजूद नहीं है, तो वो क्या लाएगा हमें क्रॉनिक नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। क्रॉनिक क्योंकि 6 हफ्ते से पुराना है, इन्फ्लामेशन नहीं है, इसलिए क्रॉनिक नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। अब इसमें फिर आपको पूछना होगा क्या उसमें डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट या कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इन्वॉल्व है, हिप जॉइंट इन्वॉल्व है या नी जॉइंट इन्वॉल्व है, क्या इनमें से कोई जॉइंट उसमें इन्वॉल्व है जो पेन आपको 6 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है। अगर पेशेंट बोलता है हाँ हो रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है और ये सारे के सारे जॉइंट इन्वॉल्व हैं, डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, ये सब इन्वॉल्व हैं, तो वो केस चला जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। लेकिन अगर पेशेंट बोलता है नहीं ये जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, इसके अलावा जॉइंट इन्वॉल्व है, तो हम सोच सकते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस के बारे में और चार्कॉट्स आर्थराइटिस के बारे में। इन सब डिजीजेस को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम लोग फेमिलियर हो जाए इनके नाम से कि क्या क्या नाम हो सकते हैं डिजीज कंडीशन के और वो किन किन क्लिनिकल कंडीशंस में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी ओनली डिस्कसिंग अबाउट द नेम्स, है ना, क्या एल्गोरिथम है, किस तरह से हमें मूव करना है आगे किसी भी डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए अगर हमारे पास कोई पेशेंट है जॉइंट पेन्स का लेकर। नाउ क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन में क्या होता है, अगर ये क्रॉनिक है और तो हम उसे वापस से पूछेंगे, ठीक है, क्रॉनिक काफी टाइम से है, प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस है, इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस है या नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है या नहीं है, सिस्टेमिक सिम्टम्स है या नहीं है, और ईएसआर सीआर रिलेटेड है या नहीं है, ये हमें वापस से पेशेंट को पूछना होता है। अगर इन्फ्लेमेशन मौजूद है, पेशेंट अगर हमें बोलता है कि हाँ मेरी क्रॉनिक कंडीशन भी है और मुझे इन्फ्लेमेशन भी है, इन्फ्लेमेशन नहीं था तो हमने डिस्कस कर लिया पहले, अब इन्फ्लेमेशन अगर मौजूद है तो हमें फिर पूछना होता है कि अगर इन्फ्लेमेशन मौजूद है तो फिर कितने जॉइंट्स में है, कितने जॉइंट इन्वॉल्व हैं, आपकी बॉडी के कितने जॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मौजूद है और कितने टाइम से पेन हो रहा है। 6 हफ्ते से ज़्यादा है तो अपने आप क्रॉनिक में चला गया, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन है 1 से 3 जॉइंट के अंदर है इन्फ्लेमेशन, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी मोनो और ओलिगो आर्थराइटिस के केस में हम जाएंगे, जिसमें मोनो या सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगा, ओलिगो मतलब फ्यू जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगा, वो 3 से कम होगा, 3 या 3 से कम होगा। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी पॉलीआर्थराइटिस में पेशेंट चला जाएगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी पॉलीआर्थराइटिस। अब अगर हमारे पास में क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी मोनो या ओलिगो आर्थराइटिस होता है तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, पेशेंट बोलता है 6 हफ्ते से ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन भी मौजूद है और एक या कुछ 3 से कम जॉइंट मेरी बॉडी के इन्वॉल्व है, तो वी हैव टू कंसीडर इंडोलेंट इन्फेक्शन, या तो इंडोलेंट इन्फेक्शन हो, सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, तो सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकती है, यहाँ पे रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर पॉलीआर्टिकुलर जीआईए जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। तो अगर इन्फ्लेमेशन मौजूद है और 3 से कम 1 से 3 जॉइंट में है तो हम इंडोलेंट इन्फेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में सोच सकते हैं, रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में सोच सकते हैं और पॉलीआर्टिकुलर जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के बारे में सोच सकते हैं। अब अगर 3 से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, अगर इन्फ्लेमेशन भी है और 3 से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम पूछते हैं कि ठीक है आपके 3 से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो क्या वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब बॉडी को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो दोनों साइड, जैसे दोनों के दोनों एल्बो जॉइंट, दोनों की दोनों नी जॉइंट, है ना, तो वो अगर वो इन्वॉल्व है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है या सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अगर सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आप सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में सोचें और रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में सोचें। और अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर आपका सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, देन अगेन यू हैव टू आस्क फॉर कि आपके प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, मेटाटार्सिफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है ना, इसके बारे में आपको फिर आगे पूछना पड़ेगा। अगर ये सब जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना, पीआईपी, एमसीपी, एमटीपी जॉइंट अगर आपका इन्वॉल्व है, देन यू हैव टू कंसीडर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। अगर इन सब जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, देन सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट अगर इन जॉइंट्स का है, पीआईपी जॉइंट, एमसीपी जॉइंट, एमटीपी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट अगर है सिमेट्रिकली, तो इसमें आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सोचते हैं। और अगर इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट इन जॉइंट्स का नहीं है, देन यू हैव टू थिंक फॉर एसएलई, स्क्लेरोडर्मा या polymyositis. If there is no involvement, then we have to think for SLE, scleroderma or polymyositis. So these are the different clinical conditions about which we have to think whenever a patient of pain is coming to us. Now, from the next lectures, we will be discussing one by one each
disease, including the clinical features, the signs, symptoms, the diagnostic measures, and what are the presentations that a patient is bringing to us. So before we start those things, आप लोगों के दिमाग को क्लियर हो जाना चाहिए एल्गोरिथम कि हम इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। पेशेंट अगर हमारे पास में आएगा तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हम सोच सकते हैं या किस तरह से हमें आगे बढ़ना है जिससे कि हम एक गिवन डिजीज कंडीशन को डायग्नोज कर सकें। Okay, so this is for now. Thank you very much for listening. In the next lecture, we will start with the next topic, osteoarthritis. Thank you.